قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا ایک نام مبارک بشیر بھی ہے، آپ خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے سونیا آپ اپنی زبان مبارک سے خوشخبری سنا دیں۔ یا اللہ کن کو خوشخبری سنا دیں؟ فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، اور ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں۔ مومن ہو بندہ، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، نماز روزے کی پابندی کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، درود پڑھنے والا ہو، ذکر و اذکار کرنے والا ہو۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو بندہ یہ کام کر لے گا، آپ ایمان بھی لے آیا ہے، نیک کام بھی اس نے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو خوشخبری سنا دے۔ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے، ان کے لیے ہم نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ دو کام کرنے ہیں، ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں۔ خوشخبری قرآن مجید میں ہمیں کیا مل رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ایسے باغات ہم نے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرات الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہم نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جنت کے، جب یہ جنت میں آئیں گے وہاں کا پھل کھائیں گے، یہ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں یہ پھل دیا گیا تھا، یہ رزق ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں دیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ جو رزق ہوگا وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، پہلے سے ملتا جلتا پھل ان کو دوبارہ دیا جائے گا جنتیوں کو۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتی جو ہوں گے ان کو جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے پھر ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں جنت کس کو ملے گی؟ آپ نے خوشخبری سن لی ہے، گویا کہ اللہ فرما رہا ہے جنت بھی میری ہے، بندے بھی میرے ہیں، قرآن پاک کلام بھی میرا ہے، لیکن اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو خوشخبری سنا دے، اپنی زبان مبارک سے خوشخبری سنا دے۔ جو بندہ ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد نے کام کیے ہیں، ایمان لانے کے بعد گھر میں نہ بیٹھ جائے، نماز روزے کی پابندی کرتا رہے۔ حضرت عباد ابن منبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کلمہ طیبہ پڑھنا یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کلمہ طیبہ پڑھنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے جو چابی ہوتی ہے اس کے دندانے بھی ہوتے ہیں، جس چابی کے دندانے نہیں ہوتے اس سے تو تالا کھلتا ہی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو جنت کا تالا کھل جائے تمہیں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز روزے کی پابندی بھی کرنی پڑے گی۔ کلمہ پڑھنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن جو اس کے دندانے ہیں وہ نماز روزہ حج اور زکات ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ حج زکات کی جب ہم پابندی کرتے رہیں گے میرے بھائیوں، ہم اچھے اعمال کرتے رہیں گے، پھر جنت کا تالا آسانی کے ساتھ کھل جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جنت کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کو پانی سے بنایا گیا ہے، جنت کو پانی سے بنایا گیا ہے۔
صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور بھی جنت کے بارے میں بتائے، جنت کی بلڈنگ کیسی ہے، جنت کی عمارت کیسی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اور وضاحت فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ فرمایا ان اینٹوں کو ملانے کے لیے جو گارا استعمال ہوتا ہے نا وہ مشک کی خوشبو کا ہے۔ اس کی سرکار نے فرمایا جنت کی جو مٹی ہے یہ زعفران کی مٹی ہے، جنت میں جو کنکریاں ہیں یہ موتیوں کی کنکریاں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم جنت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جو جائے گا وہ پریشان ہی نہیں ہوگا، وہ خوش رہے گا، اس کو کوئی بھی مایوسی نہیں آئے گی۔ فرمایا ہے میرے صحابہ جنت میں کسی جنتی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، جنت میں کسی کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا یہ انداز بیان فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، مٹی زعفران کی، اور اینٹوں کو ملانے کے لیے جو گارا استعمال ہوا ہے وہ ہے مشک کی خوشبو کا۔ اتنی اعلیٰ نعمت اللہ پاک نے تیار کی ہے، کن کے لیے تیار کی ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو جاؤ گے پھر نماز روزے کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ جنت کے کیا کہنے میرے بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہوتا ہے، ایسا درخت ہے وہاں پر اگر کوئی بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اپنے محبوب کے قدموں میں اللہ پاک ہمیں وہاں پر اس سے عطا فرما دے۔ مل کے محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ جنت کی نعمتیں کتنی اچھی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں ذرا شوق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، چاہت پیدا ہو جائے، ہم وہ کام کریں جن سے اللہ پاک جنت عطا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے 100 سال تک ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کرتا رہے پھر بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ یہی حدیث پاک سائیں محمد بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، مسجد کے منبر پر بیٹھ کے آپ بیان کر رہے تھے، آپ جنت کی باتیں بتا رہے تھے نمازیوں کو۔ آپ نے یہی حدیث پاک سنائی کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا 100 سال تک ایک گھوڑے پر سوار بندہ سواری کرتا رہے وہ اس کا درخت ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا وہ درخت ہوگا۔ تو ایک بندے نے اعتراض کر دیا کہ پھر اس کا تو پھل کھانا بڑا مشکل کام ہوگا، اتنا بڑا جو درخت ہوگا اس کا پھل ہم کیسے کھائیں گے، ہمارا ہاتھ کیسے وہاں تک پہنچے گا؟ تو سائیں محمد بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، سامنے ایک درخت تھا، جب آپ نے یہ حدیث پاک بیان کی ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، آپ نے فرمایا تم میری بات کو سمجھے ہی نہیں ہو، بات یہ ہے یہ دیکھو ایک جنتی بیٹھا ہے وہ سامنے جنت کا درخت ہے، ذرا بند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ شاہی صاحب سمجھا رہے ہیں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں اللہ کے ولی دلیلیں کم دیتے ہیں اور پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، تو میں تم سمجھو ہی نہیں ہو، یہ دیکھو یہ جنتی بیٹھا ہے، وہ سامنے جنت کا درخت ہے، جنتی ایسے اس کو اشارہ کرے گا۔ سائیں صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، جب ایسے اشارہ کیے نا درخت چلنا شروع ہو گیا، فرمایا اوہ درخت تو ٹھہر جاؤ میں تم کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے آقا کے غلاموں کو اللہ پاک نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ درخت اللہ پاک نے وہاں پر بنایا ہے، بلکہ میں نے تو یہ بھی پڑھا کتابوں میں میرے بھائیوں، روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک بندہ جنت کے اندر لیٹا ہوگا، سنیے جنت کی نعمتیں کتنی شاندار ہے،
जन्नत के अंदर एक बंदा लेटा होगा, लेटे ही लेटे उसकी जुबान भी नहीं हिलेगी, उसके होंठ भी नहीं हिलेंगे, उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल आएगा, यार ऐसा ना हो कि मैं यहां पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दूं, ऐसा ना हो कि मैं यहां खेती बाड़ी करना शुरू कर दूं। हदीसों में आता है, रिवायात में आता है कि अभी उसके दिल में ख्याल ही आएगा, जन्नती के दिल में भी ख्याल ही आया, जुबान नहीं हिली, होंठ नहीं हिले, दुआ नहीं की, अभी ख्याल आया, उसी वक्त दो फरिश्ते बीज लेकर उसके पास आ जाएंगे, उसको कहेंगे ये लो पकड़ो बीज और खेती बाड़ी शुरू करो। वो बंदा जन्नती जो होगा उन बीजों को जमीन पर बो देगा। हदीस पाक में आता है पहाड़ों से बड़ी बड़ी फसलें उसी वक्त ही उग जाएंगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत है, आप कहते हैं इसमें भी बड़ी नुक्ते वाली बात है, आप कहते हैं इसलिए उसको जो ख्याल आया वो क्यों आया है, वो फरमाते हैं कि लोग जिस हाल में जिएंगे उसी हाल में मरेंगे, लोग जिस हाल में जिएंगे उसी हाल में मरेंगे, और जिस हाल में मरेंगे उसी हाल में क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं दरअसल बात यह है, यह बंदा जन्नत में जाके खेती बाड़ी का क्यों सोच रहा था, इसलिए कि जब ये दुनिया में था तो ये खेती बाड़ी किया करता था, जब ये दुनिया में था तो खेती बाड़ी किया करता था, अब ये जन्नत में चला गया है तो उसको वहां पर भी खेती बाड़ी के ख्याल आ रहे हैं। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं मजे वाली बात यह है कि जो बंदा दुनिया में खेती बाड़ी का काम करता था उसको वहां जाकर खेती बाड़ी याद आ रही है, और जो बंदा दुनिया में अपनी जिंदगी मदीने की याद में गुजार दे, जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, जो बंदा इस दुनिया में अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मार दे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाता रहे, खुद में दाखिला होगा हमारा इस शान से या रसूलुल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो दुनिया में नारे लगाता रहे सरकार के, सरकार की महफिलें सजाता रहे, सरकार का जिक्र सुनता सुनाता रहे। मुफ्ती साहब फरमाते हैं वो जन्नत में चला जाएगा, याद उसको मदीने की ही आनी है, वो जन्नत में चला जाएगा, याद उसको मदीने की सताएगी तरवाएगी। क्यों? इसलिए कि मदीना इसलिए अतार है दिलो जान से प्यारा, क्योंकि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। जिस बंदे के दिल में जो भी ख्याल आएगा मेरे भाइयों, जन्नत की अल्लाह पाक ने नेमतें ऐसी बनाई है, उसी वक्त उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, उसी वक्त उसका जो ख्याल है वो पूरा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है जन्नत में एक बाजार भी लगेगा, जन्नत में एक बाजार भी लगेगा, यहां भी बाजार लगता है, हफ्ता बाजार लग जाता है, इतवार बाजार लगता है, और पीर और मंगल आपको पता है बाजार लगते हैं यहां पर भी। हदीस पाक में आता है हजरत अनस इब्न मालिक इस हदीस पाक के रावी है, आप फरमाते हैं कि जन्नत में भी एक बाजार लगेगा, तमाम जन्नती जुम्मे वाले दिन उस बाजार में जाया करेंगे। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, जिसने तो जाना है उस बाजार में जोर लगा कर कहें सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ खामोश है, लगता है उन्होंने जाना नहीं है, चले जाइए आप, जन्नत का बाजार है, जोर लगा कर कहें सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन मेरे आका का फरमान झूठा। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया, काज लेंदे हसियां दे बोल कमली वालिया, ठंडिया हवावां ने मदीने विचों चलियां, जुल्फां नूं दिता जदों खोल कमली वालिया। उनके बोल पहाड़ों जैसे और असहाब सितारों जैसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, जन्नत में एक बाजार लगेगा, जन्नत वाले जुम्मे वाले दिन उस बाजार जाया करेंगे। जुम्मा बाजार हो गया ना, जुम्मे वाले दिन उस बाजार में जाया करेंगे। जो भी उस बाजार में जाएगा ना, जब वो बाजार से वापस अपने घरों में आएंगे, उनके घर वाले उनको देखकर कसम उठाकर कहेंगे, अल्लाह की कसम तुम बाजार से वापस आए हो, तुम्हारा तो हुस्न और ज्यादा हो गया है। जन्नत में लोग बड़े हसीन खूबसूरत हो जाएंगे। 33 साल उम्र होगी, कितने साल? सारे बोले कितने साल? 33 साल हर शख्स की उम्र, 33 साल हर जन्नती की उम्र 33 साल होगी, और हर जन्नती का कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जितना 60 गज यानी 90 फुट उसका कद होगा। 33 साल उम्र याद रखनी है। जो जन्नत में जाएंगे,
जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? 33 साल। कद कितना होगा? 90 फुट। कितना कद होगा? 90 फुट। जितना कद अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। देखिए दुनिया में कोई छोटा भी है, कोई 8 फुट का, कोई 9 फुट का, कोई 10 फुट का, कोई 5 का, कोई 6 का। देखिए वो जब जन्नत में जाएगा, सबसे बड़ी ये कितनी खूबसूरत अल्लाह की नेमत है, सबका कद ही 90 फुट। और हुस्न भी सबका ज्यादा हो जाएगा। जन्नतियों का हुस्न बहुत ज्यादा होगा, बड़े हसीन व जमील। हदीस पाक में आता है, शोहर जन्नत में शोहर अपनी बीवी का चेहरा देखेगा तो उसे अपना चेहरा नजर आएगा। जब बीवी अपने शोहर का चेहरा देखेगी तो उसको अपना चेहरा नजर आएगा। आपको खुशी नहीं हो रही? जोर से कहें सुभान अल्लाह। जन्नत में ये नेमतें मिल रही है मेरे भाइयों, तो क्यों ना फिर हम जन्नत वाले काम करें। हम ऐसे काम करें कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ओए जन्नतियों, आज तुमसे जो वादा किया था, आज वो वादा पूरा किया जाएगा। जन्नती पूछेंगे, वो वादा कौन सा वादा है? फिर क्या होगा? वादा पूरा किया जाएगा। अहले जन्नत को अल्लाह पाक जन्नत में अपना चेहरा दिखा देगा। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत में होगी वो रब का दीदार होगा। सारे जन्नती रब का दीदार कर लेंगे, अल्लाह को देख लेंगे। मेरे भाइयों, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हम वो काम करें जन्नत हासिल करने वाले काम। अब जन्नत हासिल करने वाले काम क्या है? नमाज रोजे की पाबंदी, कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनिए जरा, फरमाया जन्नत में एक ऐसा फल है, इतना शानदार एक फल है, वो सेब से बड़ा होगा, अनार से छोटा होगा। सेब से बड़ा होगा, अनार से छोटा होगा। ऐ मेरे सहाबा, वो फल शहद से ज्यादा मीठा होगा, मक्खन से ज्यादा नरम होगा। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से ज्यादा नरम, शहद से ज्यादा मीठा। सरकार ने फरमाया, उसका जो तना होगा ना दरख्त का, वो सोने का होगा। उसकी जो टहनियां होगी वो मोतियों की होगी। उसके जो पत्ते होंगे वो जबरदस्त के होंगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना शानदार फल, इतना खूबसूरत फल कौन खाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा जो उम्मती इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, जन्नत में वो फल अल्लाह मेरे उस उम्मती को खिलाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये दुनिया की नेमतें तो मेरे भाइयों ये फानी नेमतें हैं, इन्हें खत्म हो जाना है। देखिए दुनिया में हम आए हैं, दिन ब दिन उम्र गुजरती है, बुढ़ापा आता जाता है, जवानी खत्म होती जाती है। सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना माँ पियो हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारा। सदा माँ बाप पास नहीं रहते, सदा जवानी पास नहीं रहती, सदा जो है वो ताकत पास नहीं रहती। मेरे भाइयों, सदा बाग के अंदर बुलबुलें नहीं चलाती, सदा जो है ये सारे काम नहीं होते। लेकिन जन्नत ऐसी जगह है मेरे भाइयों, जहां पर लम्हा बा लम्हा इंसान के हुस्न में इजाफा होता जाता है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं उस जात की कसम खाकर कहता हूं जिस पर रब ने कुरान नाज़िल फरमाया है, दुनिया में तो हम लम्हा ब लम्हा फना होने की तरफ जाते हैं ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जन्नत में ऐसा होगा, लम्हा ब लम्हा अल्लाह पाक हमारे हुस्न में इजाफा फरमाता रहेगा। वहां हुस्न ज्यादा होता जाएगा। जो जन्नती पुराना होगा उसकी जवानी खत्म नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा जवानी हो जाएगी, उसका हुस्न और ज्यादा हो जाएगा। मेरे भाइयों, अब करना क्या है? जिसे बात में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोजाना 3 मरतबा ये दुआ करे, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। सरकार ने फरमाया, जो बंदा 3 मरतबा ये दुआ करता है ना, जन्नत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, या अल्लाह इसको जन्नत में दाखिला अता फरमा। जन्नत भी दुआ कर देती है उस बंदे के बारे में। एक और बहुत ही आसान बात, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया।
3 लफ्ज है ये, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोजाना सुबह उठकर सिर्फ ये एक मर्तबा पढ़ लिया करे, सरकार ने फरमाया मैं उस बंदे का हाथ पकड़ कर उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे का हाथ पकड़ कर उसको जन्नत में लेके जाएंगे। काम कितना आसान है, कितना आसान काम है मेरे भाइयों। हमें चाहिए, जन्नत इतनी अजीम शान नेमत है, इतनी खूबसूरत ये नेमत है, हम इसको हासिल करना चाहते हैं तो हमारे काम भी जन्नतियों वाले होने चाहिए। नमाज का टाइम हो तो हम नमाज पढ़े, ये जन्नतियों वाले काम है। हम जब नमाज के टाइम नमाज नहीं पढ़ेंगे और हम उम्मीद ये रखें कि मुझे जन्नत मिल जाए, हम हज ना करें, हम ज़कात ना दें, हम रोजे आके फिर हम ये उम्मीद रखें कि मुझे जन्नत मिल जाए। जन्नत मैंने आपको पहले ही बताया है, कलमा तैबा ये जन्नत की चाबी है और इस चाबी के जो दंदाने हैं वो नमाज, रोजा, हज और ज़कात है। नेक काम करते रहेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते रहेंगे, फिर देखें जन्नत में जाना कितना आसान हो जाएगा। मेरे भाइयों, हदीस पाक में आता है जन्नत ऐसी अजीम शान नेमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ा रहे हैं। अब नमाज के दौरान सरकार ने हाथ मुबारक आगे किया, फिर पीछे कर लिया, फिर हाथ मुबारक आगे किया, फिर पीछे कर लिया। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने देखा है आप नमाज के दौरान हाथ को कभी आगे करते हैं, कभी पीछे कर लेते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हिकमत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं खड़ा तो मदीने में था, मुसल्ले पर मैं खड़ा था, लेकिन मेरा ये हाथ जन्नत तक पहुंच चुका था। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा ये हाथ जन्नत तक पहुंच चुका था, जन्नत में अंगूर का गुच्छा मेरे हाथ में आ गया था। ऐ मेरे साहबा, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं उसको तोड़ लाऊं और तुम्हें खिलाऊं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, जन्नत तो एक राज है, राज वाली बात राज में ही रहनी चाहिए। ऐ मेरे साहबा, अगर मैं वो जन्नत का अंगूर का गुच्छा तोड़ कर ले आता, तुम सारी जिंदगी भी खाते रहे रहते, क़यामत तक उसने खत्म ही नहीं होना था, उसने खत्म ही नहीं होना था। ये जन्नत किसके सदके में मिलनी है? सरकार के सदके में मिलनी है। किसके सदके में मिलनी है? सरकार के सदके में मिलनी है। मेरे भाइयों, हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मस्जिद को अपना घर बना ले, जो बंदा मस्जिद को अपना घर बना ले, सरकार ने फरमाया अल्लाह पाक उसको जन्नत की जमानत अता फरमाता है। अल्लाह पाक उस पे रहमत भी फरमाएगा, उसको अपना फजल भी अता फरमाएगा, जो बंदा मस्जिद को अपना घर बना ले। कितना प्यारा ये फरमान है। आज हम मस्जिद से दूर हो चुके हैं, जो मस्जिद में आते भी है, अजान हुई, नमाज पढ़ी, वापस चलेंगे, मस्जिद को अपना घर बना ले। जिस तरह हमें अपने घर से प्यार है, जिस तरह हमें अपने घर में सुकून मिलता है, करार मिलता है, ऐसे ही जब हम मस्जिद में आए हमें सुकून मिले, करार मिले, ऐसा ही हमारा ताल्लुक मस्जिद के साथ जब होगा। मेरे भाइयों, हदीस में यह आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह पाक उस शख्स को जन्नत की जमानत अता फरमाता है। मस्जिद नबवी बन रही थी, साथ वाला प्लाट खाली था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया है कोई ऐसा शख्स जो इस प्लाट को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मस्जिद नबवी बन रही थी, साथ वाला प्लाट खाली था। अब हुआ कि हजरत उस्मान गनी को पता चल गया, हजरत उस्मान गनी ने वो प्लाट खरीदा, मस्जिद में शामिल कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने प्लाट खरीद कर मस्जिद में शामिल कर दिया है, क्या मुझे भी जन्नत की खुशखबरी है? सरकार ने फरमाया, हाँ मेरे प्यारे उस्मान, अल्लाह पाक तुम्हें भी जन्नत अता फरमाएगा। तो जन्नत में ले जाने वाले जो काम है मेरे भाइयों, मस्जिद से मोहब्बत, मस्जिद को अपना घर बना ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा गोश्त में जितनी मस्जिद बनाता है, कितनी मस्जिद? गोश्त में जितनी, ज्यादा बड़ी नहीं, 2 कनाल 3 कनाल की नहीं, घोंसले का घोंसला कितना होता है? परिंदे का घोंसला। फरमाया जो बंदा परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाता है, अल्लाह पाक जन्नत में उसको महल अता फरमाएगा। तो जहां पर मेरे भाइयों मस्जिद का काम हो रहा हो,
मस्जिद की तामीर हो रही हो, मतलब ये है कि उस काम में हिस्सा ले, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हम दुनिया से चले भी जाएंगे, ये सदका जारिया है। देखिए ये टाइलें लगी है, ये लैंटर है, ये पंखे चल रहे हैं, इतनी शानदार हमारी मस्जिद ये तमीर हुई है। अब जिन लोगों ने हिस्सा डाला था, अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं, सोचे तो सही, नमाज भी हो रही है, जुम्मे भी हो रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, वो तो दुनिया से चले गए हैं, उनके अमाल का सिलसिला बंद हो चुका है, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो रोजा नहीं रख सकते, उनके अमाल का सिलसिला बंद हो चुका है, लेकिन इस काम का सवाब उनको कब्र में भी पहुंचता रहेगा। यहां मौजन कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कब्र में उस बंदे को सवाब पहुंचता रहेगा। यहां मौजन कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बंदा तो पैसे लगा कर चला गया है, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, वो कब्र में चला गया है, लेकिन ये अल्लाह का घर बना गया है, मस्जिद में अपना हिस्सा डाल गया है, कब्र के अंदर उसको सवाब मिलता रहेगा। कब्र में तो सवाब मिलना ही मिलना है, जन्नत में भी मकान मिल जाना है। हर किराएदार परेशान है कि मुझे अपना मकान मिल जाए, हर किराएदार कहता है, कोशिश करता है, बड़े बड़े वो हीले बहाने करता है, दिन रात एक करता है, दुनिया में वो इतनी कोशिश करता है कि मुझे मकान मिल जाए। तो मेरे भाइयों, एक मकान जन्नत में भी होना चाहिए, एक हमारा महल जन्नत में भी होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोजाना 1000 मरतबा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है ना, उस वक्त तक उस बंदे को मौत ही नहीं आनी जब तक वो दुनिया में रह के जन्नत में अपना मकान ना देख ले। जन्नत में मकान बनाना चाहते हैं, 1000 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़े, जन्नत में मकान बनाना चाहते हैं, मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले। मेरे भाइयों, हमारी मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह तमीर का काम शुरू हो चुका है और गुंबद बन रहा है। क्या बन रहा है? सरकार के रोजे के साथ निस्बत, सरकार के गुंबद के साथ निस्बत है इस गुंबद को, इस गुंबद का काम हो रहा है। अभी भी काफी खर्चा बाकी है। आप जितने भी नमाजी भाई आए हैं, आप सबसे गुजारिश है, हिस्सा मिला ले मेरे भाइयों। जिंदगी मौत का पता नहीं है, मर जाएंगे, गुंबद चमकता रहेगा, आबाद रहेगा, हमारी कब्र भी आबाद रहेगी। ये सदका जारिया है। ये क्या है? सदका जारिया मेरे भाइयों। हिस्सा मिलाना चाहते हैं, हिस्सा मिलाए, सामान देना चाहते हैं, सामान दे, पानी देना चाहते हैं, पानी दे, रेत देना चाहते हैं, रेत दे, जो कुछ भी आपके वश में है, आपकी ताकत में है, जरूर अपना हिस्सा मिलाए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें। मेरे साथी के रामी फरमाया करते थे कि दुनिया में तो हमें नजर ही ना आती, लेकिन आंख बंद होने देर, आंख जब बंद होगी ना, फिर जब हमने ये अच्छे अच्छे काम किए होंगे, दीन वाले काम किए होंगे, फिर देखिए हम इसके फायदे कब्र में नजर आएंगे। फिर हम जब कब्र में जाएंगे ना, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मैं तो मर के आया हूं, मैं तो सरकार से वफा करके आया हूं, मैं तो सरकार के दीन का काम करके आया हूं, अब तो मैं मर के सरकार के कदमों में इसलिए तो आया हूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। और जरा रुक जाओ होना जानता। मेरे साथ के रावी फरमाया करते थे, हम क्या कहेंगे कब्र में जाकर? फरिश्ते जब पूछेंगे ना, सवाल जवाब करेंगे, कहते हैं, हम कहेंगे जरा रुक जाओ होना जानता, जरा रुक जाओ हुन आ जांदा, जदों आ जावेगा फिर दस देगा, फिर पूछना उसने बारे विच जिदी दीद दी खातिर मरिया। मेरे भाइयों, जितनी ये जिंदगी है, राह खुदा में खर्च करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करे, जन्नत में ले जाने वाले काम करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको जन्नत अता फरमाए। 3 मरतबा ये दुआ अपनी दुआ में आपने शामिल करनी है। पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले, आपने दुआ करनी, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। होगा क्या? फिर जन्नत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, या अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमा, या अल्लाह इसको जन्नत अता फरमा दे। तो जन्नत मिल गई तो वहां आपको पता है फिर वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, वहां मौत नहीं आनी, वहां जो मर्जी खाए पिए। एक काफिर ने कहा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया तो वो कहने लगा, जी जन्नत में खाए पिएंगे लोग? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जन्नत में खाना पीना भी होगा, खाए पिएंगे। वो कहने लगा, अगर खाना पीना फिर तो क़ज़ाए हाजत भी आएगी। अगर जन्नत में खाएंगे
تو جنت میں تو پھر قضائے حاجت بھی آئے گی، پھر وہاں کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی کھائے پیئیں گے بھی، قضائے حاجت ان کو نہیں آئے گی، بلکہ ایک خوشبودار پسینہ ان سے نکلے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ فرمایا ان کو خوشبودار پسینہ آئے گا، کھانا سارا ہضم ہو جائے گا۔